ایران کے شہر اصفہان میں کسی زمانے میں ایک شخص رہتا تھا جو زندگی کی 70 بہاریں دیکھنے کے بعد اب اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ اس آدمی نے اپنی زندگی غربت میں گزاری اور مرتے وقت اس کے پاس فقط 300 دینار تھے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ جن دنوں وہ موت کے قریب تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنی آخری خواہش کا اظہار کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا، بیٹا، میرے پاس تمہارے لیے کوئی زیادہ مال و دولت تو نہیں، لیکن 300 دینار تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ میری آخری خواہش ہے کہ تم اس رقم کو خرچنے کی بجائے نصیحت فروش کے پاس جاؤ اور اس رقم سے نصیحت کی دولت خریدو اور وہ جیسا کہے ویسا کرو۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ وہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ باپ کی وفات کے کچھ دنوں بعد ابراہیم خود سے کہنے لگا، مجھے اپنے والد کی آخری خواہش پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے 300 دینار لیے اور نصیحت فروش کے پاس جا کر کہنے لگا، میرے پاس 100 دینار ہے، اگر تم مجھے ایک نصیحت دو گے تو میں تمہیں 100 دینار دوں گا۔ نصیحت فروش نے ابراہیم سے 100 دینار لیے اور کہنے لگا، سردیوں میں جب آسمان پر بادل ہوں تو باہر کبھی نہ جانا۔ بس اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ ابراہیم اب خود سے کہنے لگا، 100 دینار میں بس اتنی سی بات؟ اس نے دل میں سوچا کہ ایک اور کوشش کرتا ہوں، اس مرتبہ یہ ضرور کوئی خاص بات بتائے گا۔ میرے پاس 100 دینار اور بھی ہے، میں وہ بھی تمہیں دوں گا، مجھے کوئی اچھی سی نصیحت کرو۔ پھر اس نے رقم نکالی اور نصیحت فروش کہنے لگا، جب بھی تم کسی کبوتر، کتے اور بلی کو فروخت ہوتا دیکھو تو ان کو خرید لو، چاہے قیمت جو بھی ہو، اور ان کا اچھے سے خیال رکھنا۔ اس نے مزید کچھ نہ کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ ابراہیم نے آخری 100 دینار بھی نکالے اور نصیحت فروش کو دے دیے۔ اس مرتبہ نصیحت فروش کہنے لگا، کبھی کسی کو اپنے راز مت بتانا اور کبھی کسی باہر کی عورت کو اپنے گھر داخل مت ہونے دینا۔ اس نے اتنا کہا اور پھر سے خاموش ہو گیا۔ ابراہیم اپنی ساری دولت اس نصیحت فروش کو دے کر گھر روانہ ہو گیا۔ کچھ وقت گزرا اور جب سردیوں کا موسم آیا تو ابراہیم نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ سفر کا ارادہ کیا۔ ان کے راستے میں ایک مشکل اور خطرناک پہاڑ تھا۔ ان دوستوں نے سفر کی تیاری کی، لیکن جب سفر پر روانہ ہونے لگے اور آسمان کی طرف دیکھا تو بادل کا ایک ٹکڑا نظر آیا۔ ابراہیم کو اپنی خریدی ہوئی نصیحت یاد آئی اور وہ خود سے کہنے لگا، میں نے 300 دینار میں نصیحتیں خرید رکھی ہیں، لگتا ہے اب ان پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا، آج سفر نہیں کرتے، ہم کل صبح روانہ ہوں گے۔ لیکن دوست کہنے لگے، ابھی تو موسم ٹھیک ہے، اگر تم آنا چاہتے ہو تو آؤ، ورنہ ہم جا رہے ہیں۔ ابراہیم نے جواب دیا، میں ابھی نہیں جا رہا، تم لوگ اپنی مرضی کے مطابق جاتے ہو تو جاؤ۔ اس کے دوست کہنے لگے، ڈرپوک کہیں کا، جاؤ تم گھر واپس جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد وہ تینوں دوست سفر پر نکلے اور پہاڑ کی گھاٹی کے سرے پر جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک بادل اٹھا اور موسم خراب ہونے لگا، بجلی کڑکی اور ایک برفانی طوفان آیا۔ بدقسمت مسافر راستہ بھٹک گئے اور طوفان کی زد میں آ کر وہیں مارے گئے۔ جب صبح ہوئی تو آسمان صاف ہو گیا اور ہوا گرم اور خوشگوار ہو گئی۔ ابراہیم نے سفر شروع کیا اور پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کے تینوں دوست برفانی طوفان میں مارے جا چکے ہیں۔ وہ ان کے قریب گیا اور ان کا جائزہ لینے لگا اور اس نے دیکھا کہ ہر ایک کے پاس 100 دینار کا تھیلا موجود تھا۔ اس نے وہ رقم لی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب ابراہیم نے دیکھ لیا کہ پہلی نصیحت سچ ثابت ہو چکی تھی۔ اگر اس نے باپ کی کہی بات پر عمل نہ کیا ہوتا اور نصیحت نہ خریدتا تو وہ بھی ان کے ساتھ جاتا اور ان کے ساتھ ہی مارا جاتا۔ لیکن وہ نہ صرف اپنی منزل تک بحفاظت پہنچا بلکہ اس نے نصیحت فروش کو جو رقم دی تھی وہ بھی اسے واپس مل گئی۔ کچھ دن گزرے تو بازار میں ایک آدمی آیا جو ایک کبوتر، ایک کتا اور ایک بلی بیچ رہا تھا۔ ابراہیم نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے اپنی خریدی ہوئی نصیحت یاد آئی اور وہ اس سے پوچھنے لگا، دوست کیا قیمت ہے؟ مالک نے کہا، 300 دینار، نہ زیادہ نہ کم۔ لوگ اس کی بات سن کر بہت زور سے ہنسے اور کہنے لگے،
एक कबूतर, एक कुत्ते और एक बिल्ली का 100 दीनार, इसीलिए तुम्हारा माल अभी तक बिक नहीं सका। लेकिन इब्राहिम जल्दी से आगे बढ़ा और 300 दीनार देकर वो तीनों जानवर खरीद लिए और अपने साथ ले आया। जानवरों को खरीदने के बाद वो सोचने लगा, मैं अब क्या करूं? मेरे पास ना कोई दोस्त है और ना कोई चीज, और मेरे जानवरों की हालत भी बहुत खराब है। वो सारा दिन इन्हीं ख्यालात में डूबा रहा और रात को जब सोया तो उसने ख्वाब देखा, एक बहुत बड़ा खजाना किसी अनजान गार में पड़ा है और वो पहाड़ों में भटकता इस खजाने को तलाश कर रहा है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो उसी ख्वाब के बारे में सोचता रहा। शक और यकीन के दरमियान झूलते हुए वो उस जगह की तलाश में निकल पड़ा जो उसे ख्वाब में दिखाई दी थी। अब ये उसका मामूल बन चुका था कि रोजाना खजाने की तलाश में सुबह घर से निकल जाता। वो अपना तीर कमान भी साथ रखता ताकि शिकार करे और अपना और अपने जानवरों का पेट भर सके। खजाने की तलाश में एक मुद्दत गुजर गई, लेकिन उसे नाकामी का सामना रहा। एक दिन जब वो घर में बैठा था तो उसे अपने बाप की याद सताने लगी और फिर उसे नसीहत फरोश का भी ख्याल आया। उसने सोचा कि एक मर्तबा फिर उसके पास जाता हूँ, हो सकता है वो कुछ मेरी मदद कर सके। जब वो नसीहत फरोश के पास पहुंचा तो अपना ख्वाब उससे बयान करने लगा और उसे नसीहत की दरख्वास्त करने लगा, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, मेरी बताई हुई नसीहतों पर अमल करो और जिंदगी में जैसे भी हालात हों हिम्मत ना हारना। ये कहने के बाद नसीहत फरोश खामोश हो गया और इब्राहिम वहां से घर लौट आया। एक दिन हस्बे मामूल इब्राहिम जब घर से खजाने की तलाश में निकल गया तो उसका कबूतर पिंजरे से निकलकर आजाद हो गया और वहां से उड़ान भर दी। जब बिल्ली ने यह मंजर देखा तो वो भी कबूतर के पीछे पीछे भागने लगी और बहुत जल्द दोनों वहां से बहुत दूर निकल गए। जब इब्राहिम घर वापस आया तो बिल्ली और कबूतर को घर से गायब देखकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी और उसने फैसला किया कि सुबह इनको तलाश करेगा। वो सारी रात ये सोचता रहा कि मेरे इस ख्वाब ने मुझे खजाना तो न दिया बल्कि मुझे थका दिया और मेरी बिल्ली और कबूतर भी जाते रहे। जब सुबह की पहली किरण ने आसमान को मुनव्वर करना शुरू किया तो उसने अपने कुत्ते को साथ लिया और बिल्ली और कबूतर की तलाश में निकल पड़ा। उसका कुत्ता सूंघते और खोज लगाते पहाड़ों की तरफ बढ़ता गया और एक गार के सामने जाकर रुक गया। इब्राहिम ने जब इस गार को देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि ये वही गार थी जिसे उसने ख्वाब में देखा था। जब वो अंदर गया तो न सिर्फ वहाँ बिल्ली और कबूतर मौजूद थे बल्कि एक औरत की लाश भी वहाँ मौजूद थी जो अब ढांचा बन चुकी थी। वहीं एक कोने में एक संदूक भी रखा था। जब इब्राहिम ने इस संदूक को खोला तो वो जेवर और सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यूं मालूम होता था जैसे वो औरत किसी कबूतर की मालिकन थी और अपना खजाना लिए कहीं रवाना हो रही थी, लेकिन किसी हादसे में उसने अपनी जान गंवा दी। अब इब्राहिम खजाने का मालिक बन चुका था और उसके दिन बदल गए थे। उसने अपने जानवरों और संदूक को साथ लिया और घर वापस आ गया। बाप और दोस्तों की वफात के बाद इब्राहिम का इस दुनिया में इन जानवरों के सिवा और कोई न था, लेकिन अब उसके पास इतनी दौलत थी कि वो शादी कर सकता था। इसलिए उसने खजाने का थोड़ा हिस्सा फरोख्त किया, घर का जरूरी सामान खरीदा और एक औरत से शादी कर ली जिसे वो बहुत पहले से जानता और पसंद भी करता था। अब उसकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी, लेकिन अभी उसकी तीसरी नसीहत का इम्तिहान बाकी था। कुछ वक्त गुजरा तो इब्राहिम की बीवी एक दिन उससे पूछने लगी, तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे दिन कैसे बदले। जिस शख्स के पास 2 वक्त का खाना मुयस्सर न था वो इतना मालदार कैसे बना? आखिर वो कौन सा राज है जो तुम आज तक मुझसे छुपाते आ रहे हो? इब्राहिम चूंकि नसीहत का पाबंद था इसलिए वो हमेशा ऐसे सवालात को टाल देता। आखिर कब तक? कुछ वक्त गुजरा तो वो सोचने लगा, ये औरत मेरी बीवी है और मियाँ बीवी के दरमियान कोई राज नहीं होना चाहिए। आखिरकार उसने अपने ख्वाब का और खजाने का सारा वाकया अपनी बीवी को बता दिया। जिंदगी चलती रही और वक्त यूं ही गुजरता रहा। इत्तफाक से उसी शहर में एक मक्कार बुढ़िया रहती थी जो ठगों के एक गिरोह की सरदार भी थी। उसे भी इस खजाने का इल्म हो चुका था और उसकी नजर
अब इब्राहिम की दौलत पर थी। बुढ़िया ने एक चाल चली और फकीरनी का रूप धार कर इब्राहिम के दरवाजे पर जा पहुंची। जब इब्राहिम घर पर नहीं था तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी और उसकी बीवी के सामने बेहोश होने का ड्रामा रचाने लगी। इब्राहिम की बीवी रहम दिल थी, वो उसे अंदर ले आई और उस बुढ़िया की खिदमत करना शुरू कर दी। अब उस मकार बुढ़िया ने मामूल बना लिया कि जब भी इब्राहिम घर पर मौजूद ना होता तो वो उसकी बीवी से मिलने चली जाती। उसने अपनी लगी लिपटी बातों से इब्राहिम की बीवी का भरोसा जीत लिया और उससे खजाने का राज उगलवा लिया, वो राज जिसकी तलाश में वो बुढ़िया फकीरनी बने धक्के खा रही थी। उसे जैसे ही मालूम हुआ कि खजाना किस जगह छुपा रखा है तो उसने अपने ठगों के गिरोह को बुला भेजा। कुछ दिन गुजरे तो इब्राहिम अपनी बीवी से कहने लगा, हमें अब इस खजाने को बेच देना चाहिए और जो रकम मिले उससे तिजारत का सिलसिला शुरू करना चाहिए, क्योंकि पड़ी पड़ी दौलत के चाहे कुएं क्यों न भरे हों, वो एक दिन खाली हो जाते हैं। जब वो अपनी बीवी के हमरा उस कमरे में पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। खजाने से भरा संदूक वहां से गायब था। उसे तलाश करने की लाख कोशिश की मगर बेसूद। मिलता भी तो कैसे, मक्कार बुढ़िया और उसके ठगों का गिरोह अपना काम दिखा चुके थे। मायूसी के आलम में इब्राहिम ने अपनी बीवी से गुस्से में पूछा, क्या किसी बाहर की औरत ने हमारे घर में कदम रखा था? उसकी बीवी ने तमाम वाकया सुनाया तो इब्राहिम को फौरन वो नसीहत याद आई, कभी किसी बाहर की औरत को घर में न आने देना। अब इब्राहिम को फौरन एहसास हुआ कि उसने नसीहत फरोश की आखिरी नसीहत पर अमल नहीं किया था। उसके चेहरे पर पशेमानी छा गई। वो धीरे से सर पकड़कर बैठ गया और अफसोस से बोला, अगर मैंने नसीहत फरोश की इस नसीहत पर अमल किया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। फिर अचानक उसे याद आया कि नसीहत फरोश ने ये भी कहा था, कभी हिम्मत न हारना और अपने फैसलों से सीखते रहना। इब्राहिम को एहसास हो गया और उससे सबक मिल चुका था कि उसके बूढ़े बाप ने उसे नसीहत फरोश के पास क्यों भेजा था। दौलत से ज्यादा अहम जिंदगी में नसीहतों का वजन होता है। खजाना खो जाने के बावजूद इब्राहिम इस बात का इदराक कर चुका था कि इंसान की असल ताकत उसकी अक्ल और नसीहतों पर अमल करने में है। इब्राहिम ने फैसला किया कि वो अपनी मेहनत और बड़ों की नसीहतों पर अमल करके दोबारा अपनी जिंदगी संवारे।